we bring to you today an extremely important and a serious issue. The scandalous expose of Rafale scam involving massive corruption, treason, loss to public exchequer has finally been uncovered and laid bare. Friends, Congress Party and Shri Rahul Gandhi stand vindicated today. The French have ordered an investigation into the Rafale scam. On June 14, 2021, French Public Prosecution Services, which is also called the PNF, has ordered an investigation into Rafale papers for corruption, for influence peddling, for money laundering, for favoritism on the complaint of a French anti-corruption NGO Sherpa. I'm told, as reported by many French news websites and newspapers, that the investigation will cover, among others, the questions surrounding the actions of former French President, Mr. Francois Hollande, who was in office when the Rafale deal was inked, and the current French President, Mr. Emmanuel Macron, who was at that time Mr. Hollande's Economy and Finance Minister. I'm told that it will also cover the then Defense Minister, who is now the French Foreign Minister, as also Mr. Anil Ambani's company, the Reliance. Friends, the sweetheart deal and role of Modi government has also been now exposed. The French news website Mediapart has also released details of the agreement entered into between Dassault Aviation and Reliance Infra of Mr. Anil Ambani, wherein they constituted a joint venture company called DRAL, Dassault Reliance Aerospace Limited. This substantiates the statement made by the then French minister, Mr. Francois Hollande, who said that decision to appoint Reliance as Dassault's industrial partner was that of the Indian government, meaning the Modi government, and the French had no choice in the matter. It actually brings out the following 5 facts. Firstly, Reliance owned 51% of DRAL and Dassault Aviation owned 49% of DRAL. I am again sending the Reliance Infra statement in this regard as an extra A1 to you. Secondly, Reliance and Dassault agreed to a maximum investment of 169 million euros. Interestingly and intriguingly, Dassault, with 49% stake in DRAL, pledged to provide 159 million euros out of the 169 million euros. That is 94% of the total maximum investment. While Reliance with 51% stake in DRAL was to bring only 10 million euros. Thirdly, clause 4.4.1 of the agreement between Dassault and Anil Ambani's Reliance envisages that Reliance will provide production facilities and, I quote, marketing for program and services with the GOI. Obviously, it's an acronym or a reference for the influence that Mr. Ambani's company enjoyed with Modi government. Fourthly, the agreement between Reliance and Dassault excluded the PSU, the government company Hindustan Aeronautics Limited, for DRAL became now responsible for Rafale's aircraft final assembly line. Fifthly, on 25th March 2015, Dassault's CEO, Mr. Eric Trappier,
in presence of the Chief of the Indian Air Force and presence of Chairman of HAL, said in Bangalore that Dassault and HAL, Hindustan Aeronautics Limited, were proceeding in accordance with their RFP. But the very next day, that is 26 March 2015, Dassault inks a MOU with Reliance. What happened in these 24 hours? And within 15 days thereafter, that on 10th April 2015, Prime Minister Shri Narendra Modi goes to France and unilaterally announces purchase of 36 Rafale aircraft for 7.8 billion euros, bypassing an ongoing and an existing tender for purchase of 126 aircrafts, where Dassault Aviation was already a successful bidder. Now, the next interesting part is Modi government and French government and Dassault deleted the anti-corruption clauses. And now it seems to come out as to why was it done. It is important to remember that the defense procurement procedure in India contains a mandatory clause, anti-corruption clause, which means no gifts, no commission, no middlemen, no bribery. This mandatory policy was also a part of the 126 aircraft global tender issued by Congress UPA. When Prime Minister Modi proceeded to buy 36 Rafale aircrafts off the shelf, and an intergovernmental agreement was to be signed between Government of India and Government of France, our Defense Ministry proposed that the mandatory anti-corruption clause has to be a part of the intergovernmental agreement dated 20th July 2015. The French government and the Dassault, they wanted the anti-corruption clauses deleted. I'm sending the document to you as Annexure A2. Surprisingly, in September 2016, Government of India and the Prime Minister agreed to delete the anti-corruption clauses. I'm sending that document to you again as Annexure A3. This was being done despite specific guidance of Defense Ministry to retain the anti-corruption clauses. In light of what has happened today, the latest revelations, everything becomes even more scandalous. So friends, the facts now clearly tell and call for a thorough JPC probe into Rafale scam. Will the Prime Minister, like the French now, answer to the nation and tell when will the Prime Minister submit his government to a JPC probe into the Rafale scam? बहुत संक्षिप्त में आदरणीय साथियों मैं हिंदी में कहूंगा, जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या शुभा या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से रफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। तीन पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने रफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने रफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में रफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रेन की भी जांच होगी
और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटा डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था उसके तथ्य सामने रख दिए हैं कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया, परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग फॉर प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाती आई है उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं। पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी यकायक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया। और साथियों, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में मैंडेटरी शर्त है कि किसी रक्षा सौदे में ना कोई बिचौलिया हो सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता, ना कमीशन दिया जा सकता। और जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है, परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से राफेल स्कैम सामने है, राफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब राफेल घोटाले की JPC जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं, कृपया करके इंगित करें। रणदीप जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। रमन न्यूज 24, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस को लेकर सरकार की हमेशा भूमिका रही कि
पारदर्शी तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को सामने नहीं लाना है। और सरकार ने दबाव मीडिया के ऊपर भी बनाया कि मीडिया इसे बहुत ज्यादा पब्लिश ना करे, इसे टीवी पे ना दिखाए। लेकिन इस तथ्य के बाद आपको लगता है भी आपके साथ आएंगे और सरकार पर दबाव बनेगा और आने वाले संसद के सत्र में भी ये एक बड़ा मुद्दा होगा। आदरणीय मित्र, ये कांग्रेस बनाम भाजपा का मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ये मुद्दा खजाने को लूटकर चूना लगाने से जुड़ा है। ये मुद्दा राफेल सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। राफेल जहाज एक अच्छा जहाज है जिसकी खरीद कांग्रेस सरकार कर रही थी बहुत कम रेट पर, उसको कई गुना रेट पर खरीदा गया। और जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह मामला बार बार उठाया तो सरकार ने बजाय जवाब देने के उपहास और मजाक उड़ाया। हम अदालत में नहीं गए क्योंकि हमारा मानना था कि अदालत इसका निर्णय नहीं कर सकती, जेपीसी ही कर सकती है, क्योंकि इसमें एविडेंस की, कागजात देखने की और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को भी गवाही के लिए पेश करने की जरूरत है। इसलिए इस सारे मामले को लेकर अब फ्रांस की सरकार में फ्रांस की जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने ही प्रथम दृष्टि से यह स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ झाला और घोटाला है, जब उन्होंने ही एक जज बिठाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी जिसमें उनके एक मौजूदा राष्ट्रपति और एक पूर्व राष्ट्रपति जांच के घेरे में आ गए, तो मुझे बताइए, जिस देश में यानी हमारे देश में जहां यह घोटाला असली में हुआ, क्या वहां जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए? जांच अवश्य होनी चाहिए। और मीडिया के साथी हों या दूसरे साथी हों, जो जो इस पूरे मामले को आप पटाक्षेप कर रहे थे या इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे भी बड़ा विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि यह राष्ट्रहित का मामला है। ये उन लोगों के खिलाफ मामला है जो देश के खजाने को चूना लगाकर अपनी जेबें भर रहे हैं। और इसमें कौन दोषी है, कैसे कैसे घोटाला हुआ, किस किस ने किया, सरकार में बैठे किन किन सफेद पोशों की भूमिका है, ये सारी खुलकर सामने आनी चाहिए और जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगला सवाल सर आनंद पटेल जी, इंडिया टुडे से। आनंद। नमस्कार आनंद। Good afternoon, sir. The Congress party has been raising this issue right since before 2014 also. But the thing is, the government has time and again denied and declined your requests and demands for a JPC. Now, in the light of fresh probe by the French authorities, it's a judicial probe, would the Congress party approach the Supreme Court yet again in the light of the fresh revelations? I request a response in Hindi and English both. Thank you. You asked two questions, so let me answer them one by one. Firstly, a probe ordered by the French Public Prosecution Agency, PNF, now into the Rafale papers, the corruption, the influence peddling, the crony capitalism, now vindicates the stance of the Congress party and Shri Rahul Gandhi that Rafale deal is marred by corruption. The aircraft is an excellent aircraft, which was being purchased with transfer of technology by the UPA Congress regime. But this government reduced the number of aircrafts from 126 to 36, undid the transfer of technology which was to come to the PSU HAL, and bought the aircraft at a much, much higher price. Also, there were sweetheart deals vis-a-vis their crony capitalists. All this now is laid bare, stands uncovered, unmasked. Why should a JPC not now probe this? For a JPC will be able to have witnesses, will be able to have access to all the government files which the Supreme Court or the CVC never could see, will be able to ask probing questions like a civil court, will be able to punish somebody for lying, and will be able to summon the Prime Minister, the Defense Minister, the Defense Ministry officials, and anybody else that it wants to. For a JPC is the only way forward. We have said from day one, that's why Congress party never went to the court. This is not a matter to be deliberated and decided by the court, as the Supreme Court finally conceded
they don't have the jurisdiction or the wherewithal or the capacity under Article 32 to take witnesses, to let witnesses depose before the Supreme Court, or to have access to the entire governmental record. Only a JPC, and a fair and independent JPC, can do it. That's why we have maintained that, and now that the French Public Prosecution Agency has ordered a judicial probe into Rafale scam, all the more reason why a JPC should be held. हिंदी में अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, जी, आदरणीय मित्र, साफ है कि रफेल के घोटाले की परतें प्रथम दृष्टि से पूरी तरह खुल चुकी हैं। रफेल जहाज 126 जहाज यूपीए कांग्रेस सरकार बहुत कम रेट पर खरीद रही थी विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यह जहाज हिंदुस्तान में बनता, पर मोदी जी ने 126 से घटाकर जहाज 36 कर दिए और 7.8 बिलियन यूरोज यानी लगभग 68,000 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा साइन कर लिया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं ली और HAL को भी निकाल दिया और अपने मित्रों को उसमें रख लिया। इसलिए अब जब फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, भ्रष्टाचार की प्रथम दृष्टि से परतें खुल गई हैं, फेवरेटिज्म की और क्रोनिक कैपिटलिज्म की प्रथम दृष्टि से परतें खुल गई हैं, तो हमारे यहां JPC क्यों ना हो? क्योंकि आखिर में इस पूरे मामले की जड़ तो हमारे देश के अंदर है और उन लोगों के अंदर है जो सत्ता की बड़े बड़े मठाधीश बने बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को सामने आकर यह जांच ऑर्डर करनी चाहिए। हमने पहले से ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें ना तो रक्षा मंत्री को बुलाकर उनकी गवाही लेने का अधिकार है, ना प्रधानमंत्री को, और ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को, और ना ही सुप्रीम कोर्ट सारे कागजात देख सकती। इसलिए JPC ही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। जी सर, दो सवाल जैनेंद्र पूछना चाहते हैं ABP से, उसका नीरज जी आता हूं आपके पास। जी जैनेंद्र भाई नमस्कार। जैनेंद्र जी सवाल पूछिए। मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है उनकी। जी नहीं सॉरी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था खुद को। नहीं कोई बात नहीं, पूछिए प्लीज। जी थैंक यू सर। सर मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि फ्रांस में अभी जांच शुरू ही हुई है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कांग्रेस पार्टी के लिए कि थोड़ा इंतजार कर लेते कि वहां जांच पूरी हो जाती, क्योंकि एक बार और शिकायत की गई थी इसी NGO के द्वारा जिसको कि स्वीकार नहीं किया गया था। एक बार फिर उन्होंने नए दस्तावेजों के साथ शिकायत की है, तो इस बार उनकी शिकायत को स्वीकार किया गया, जांच शुरू की गई है। तो क्या थोड़ा इंतजार करना सही नहीं होता कि पहले वहां जांच हो जाती और उसमें जो खुलासे सामने आते इसके बाद कांग्रेस पार्टी नए सिरे से मांग करती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को इस खरीद को क्लीन चिट दे चुकी है, तो क्या कांग्रेस को अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले पर भरोसा नहीं है कि विदेश में एक शिकायत हुई, उसकी जांच शुरू हुई, तो आपने फिर से जो पहले आप लोग मांग करते रहे हैं वो मांग आप दोहरा रहे? और एक सवाल और ये है जो रमन सर ने भी पूछा कि क्या आने वाले संसद सत्र में कांग्रेस JPC की मांग करेगी? थैंक यू सर। आदरणीय मित्र, आपने 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। नंबर 1, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार, और कुछ उनके मित्र चैनल भी और मीडिया के कुछ साथी भी, कुछ साथियों ने बड़ा साहस दिखाया और कुछ साथियों ने केवल सरकारी वर्जन दिया। वो ये कहते रहे हैं कि कोई जांच का मतलब ही नहीं क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं। अब जिस मुल्क ने हमें जहाज बेचे हैं वहां की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने प्रथम दृष्टि से यह स्वीकार लिया कि हां भ्रष्टाचार है, गड़बड़ झाला है, घोटाला है, और वो अपने खुद के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों की भूमिका, उनकी भी जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस घोटाले और गड़बड़ झाले के सारे तार हमारे मुल्क में जुड़े हैं वहां जांच क्यों ना हो। मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ूंगा, कल को वहां भ्रष्टाचार साबित हो गया तो वो फैसला हमारी अदालत पर तो लागू नहीं है। तो इसलिए हमें तो अपनी प्रोब करनी ही पड़ेगी। क्या हम ये चाहते हैं या क्या आप ये चाहते हैं, जो मुझे मालूम है आप नहीं चाहते, कि भ्रष्टाचार की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए,
फ्रांस की सरकार की जांच का हवाला देकर और जांच की ही ना जाए। जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ गए हैं, यहां तक कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति की भूमिका भी जांच के घेरे में है, तो ऐसे में जेपीसी की जांच हमारे उन सब सफेद पोशों की या उन अधिकारियों की जिन्होंने देश की अस्मिता को खराब किया, देश में जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर है उसको चूना लगाया, और जो भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है उनकी जांच क्यों ना हो। दूसरा सवाल, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ही कहा, मैं फिर आपको मेरी पत्रकार वार्ता की ओर ध्यान दिलवाऊंगा जो मैंने उस समय की थी, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो राफेल की जांच के लिए अधिकृत नहीं। याद करिए, उन्होंने अपने फैसले के अंदर यह भी लिखा, और इसीलिए हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया ही नहीं। ये तो एक विशेष वकील ने और एक भाजपा के ही नेताओं ने, अरुण शूरी जी, यशवंत सिन्हा जी ने यह मुकदमा दायर किया था, कांग्रेस ने नहीं किया। और हमने उस समय भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट गवाही नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को गवाही के लिए नहीं बुला सकती, सुप्रीम कोर्ट सारे कागजात नहीं देख सकती जो उनको दिखाए भी नहीं गए, और उनकी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में इन सारे साक्ष्यों और तथ्यों के सुप्रीम कोर्ट जांच कर ही नहीं सकती। और स्वाभाविक तौर से यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा है, तो इसे संसद और संसद के बाहर उठाकर सरकार की जवाबदेही तो मांगी ही जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट करिए नीरज। हाँ सर, जैनेन ने मेरा सवाल पूछ लिया है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरे विषय पे पूछूं, अगर जवाब नहीं, देंगे। अभी ऐसा है, आज आदरणीय मित्र, मेरा आज अनुरोध है कि ये दूसरी पत्रकार वार्ता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज इस विषय से संबंधित सवाल पहले। ठीक है सर, ऐसे मेरा सवाल जैनेन ने पूछ लिया, इसी में उसको सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि आपने जेपीसी जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, आने वाले संसद सत्र में भी मांग करेंगे। पिछले कई सत्र के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में राफेल के मसले को आप लोगों ने मजबूती से उठाया, संसद का सत्र भी हंगामेदार रहा। तो क्या इस बार भी, जबकि 19 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जेपीसी जांच की मांग सरकार माने या ना माने, ये तो सरकार पे निर्भर करता है। आप लोग की मुहिम उसी तरह से होगी जैसे पहले रही है संसद के अंदर? आदरणीय मित्र, ये कांग्रेस बनाम भाजपा का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार सामने है तो भाजपाई नेता और प्रधानमंत्री जांच से क्यों बचना चाहेंगे? अगर दाल में काला है या पूरी दाल काली है फिर तो जांच नहीं होगी, और अगर दाल काली नहीं है और दाल में काला नहीं है तो फिर जब इतने स्पष्ट तौर से प्रथम दृष्टि के भ्रष्टाचार के आरोप सामने हैं तो जांच क्यों ना हो? एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछता हूं, एक भारतीय के तौर पर भी, भारत का जो रक्षा सौदा है उसके अंदर भ्रष्टाचार, मिडलमैन यानी बिचौलिया या हेराफेरी, इस पर बाकायदा प्रतिबंध है और इसकी बड़ी कड़ी सजा है जेल की सलाखों के पीछे जाने की। जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार सामने है तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता वो जेपीसी जांच क्यों नहीं करवाते? बात सीधी इतनी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सामिया जी है और उसके बाद सिद्धार्थ भी है। सामिया। Sir, I wanted to ask you, in April this year, when you held a press conference saying that 1.1 million euros was paid to a middleman, the Law Minister Ravi Shankar Prasad had said that these allegations are completely baseless. And he also went on to say there's a need to factor in the corporate rivalry that takes place in France. Do you think there is any merit in it? And secondly, sir, do you think that there's a need to build up a cohesive opposition parties coming together demanding for a JPC ahead of the parliament? Parliament session, and if the buck stops with the Prime Minister's office itself? You ask actually two questions. I think one should tell Shri Ravi Shankar Prasad that little knowledge is a dangerous thing.
Can he tell who in France makes fighter aircrafts other than Dassault Aviation of this type? The answer is nobody else makes. Then where is the corporate rivalry? And if he is referring to the Eurofighter, let me remind you that Eurofighter had written to Prime Minister and the then Defense Minister saying they are ready to reduce prices by 20%. Any sane government should have reweighed everything and and should have asked Dassault also to reduce prices in an equivalent fashion. Having said that, I will only like to point out today, the simple issue is the French Public Prosecution Agency has ordered a corruption probe, a influence peddling probe into Rafale papers. They are also probing their own former president and perhaps the current president. Why should Government of India, in light of these prima facie allegations of corruptions now being judicially investigated in France, not conduct a JPC? And as I said, this is not a Congress versus BJP or a opposition versus ruling party issue. This is a national security issue. Any sane Indians interested in the issue of national security and protecting our public exchequer and ensuring that all defense deals, particularly India's biggest defense deal, is transparent, is accountable, and is free from any corruption, needs to demand that government comes clean on the issue and there is a JPC probe wherein all such facets, all such matters, all such documents, records, notings, everything is probed properly. Thank you. Thank you. Last question, Siddharth ji. सर नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सर मेरा सवाल ये है कि आप जांच की बात कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और या रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा ये कहती आई है कि जांच इससे भी बड़ी अदालत जो कि जनता की अदालत है वहां पर हो चुकी है और जनता का मैंडेट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जनता का मैंडेट या जो है उनके पक्ष में है और जनता इसको किसी भी तरीके से गलत नहीं मानती। चुनावों के नतीजे ये बताते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को कैसे देखते हैं आप? आदरणीय साथी, मैं एक आपको सबसे ताजा उदाहरण दूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की और पूरी सरकार की प्रतिष्ठा पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगा दी। वो चुनाव वो हार गए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को जनता का मैंडेट मानकर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहां तो कैंडिडेट वो स्वयं थे। आदरणीय मित्र, चुनाव एक चीज है, पर चुनाव के साथ साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रहित शासन, ये हमारे संविधान की परिपाटी है जो पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया है। इसलिए जब प्रथम दृष्टि से फ्रांस में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ गए हैं, तो यहां जेपीसी की प्रोब क्यों ना हो? इसका विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से क्या जुड़ाव हो सकता है? क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री चुना गया या अमुक प्रांत में सरकार चुनी गई, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि फिर उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया कि वो पूरे प्रांत या देश को बेच खाएं? मुझे विश्वास है कि आप ये कदापि नहीं कहेंगे। इसलिए जनता का मैंडेट होता है सरकार बनाने और चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए जनता का मैंडेट नहीं होता, और ये भ्रष्टाचार का मामला है। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू प्रणव जी। Thank you, sir. Thank you, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया।